introduce yourself to the board members. Good afternoon, sir. My name is Shashank and I belong to Gaya district of Bihar. I have completed my integrated Masters of Science in Mathematics from NIT Patna, and right now I am selected as an assistant commandant in Central Ram Police Force, for which the joining is awaited, and my interest is playing volleyball. Okay. Tell me, Shashank, why you want to come to civil service? Sir, this is due to my personal connect towards Bihar also, as I have been born and brought up over here. My education is done in Bihar. So I think that through BPSC I will able to serve in Bihar and my capabilities will be put best to use over here. Okay. Tell me, if when you work as an assistant commander, you serve whom? Actually, I'm not working right now. I'm Selected. Yes, sir. Just my question: if you work as an assistant commandant, your service will be for whom? The service is under the Ministry of Home Affairs. For whom? For whom are you going to give this service? Your service will be meant for whom? For the people of Bihar? No, sir. It will be for the people all over India. India. Yes, sir. So which one is more important? Serving the people of India, which includes Bihar as well, or serving exclusively for the people of Bihar? No, sir. It's about serving India. Obviously, it's above all these things. That's full stop. Country will come first. That is full stop. And now question is that don't you think that you have got a tinge of regionalism in your mind? Sorry, sir. A tinge of regionalism, a regional mindset you are having in your approach? Is serving the people of Bihar and serving the people of India, aren't they? It's not just about the service also. As I told that I'm aware of the issues over here. So I think I'll able to make best use of my capabilities over here. Obviously, serving the people of in Bihar is also the serving the people of India. And I don't know. You are the kind of mindset you have, which is not fit for a civil service, because civil servants should be open to all kinds of challenges, to work everywhere in India. When you are getting an opportunity to serve for the nation, it should come first. No, sir, nation is coming first, as I mentioned that. But as I told that in Bihar, I have been connected to this place. Just a simple. You are not connected to India. No, sir, I am connected over India. But as a place here where you're born, you feel like if you could do something for the place over there. Tell me whether Bihar should have, or for that matter, any state should have a national flag or not. A state flag. I'm sorry. Well, in our constitution, it's explicitly mentioned that we will have a single flag over there. So I think that would may lead to a feeling of separatism. So I don't think that it's a good idea. It's a good idea. What is regionalism? Regionalism, I think, when the regional aspirations supersedes over the national aspiration. For example, like in the Northeast, they have the idea of Great Nagaland, creating a separate country. So I think creating a separate country, is it national regionalism? No, that's related to separatism. But yeah, regionalism strictly when regional aspiration presides over the national interest. So that is what I was telling you. Your regional aspiration, your aspiration, but is superseding the national. No, sir. My aspirations are that if Bihar will progress, India will progress. So, but if India progresses, Bihar too progresses. Well, the trickle down effect has not been so. तो शशांक, Yes, sir. ये बताइए कि कौन सा सर्विस मिला है आपको, कौन सा फोर्स? CRPF अलॉट हुआ सर. CRPF. Yes, sir. अभी हम लोग फ्लैग की बात कर रहे थे, आपने बताया कि सेपरेट फ्लैग विल लीड टू सेपरेटिज्म एंड ऑल. CRPF का फ्लैग देखा है आपने, या CISF का फ्लैग होता है? Yes, sir. फ्लैग होता है.
आर्मी के डिफरेंट यूनिट्स का फ्लैग होता है अपना। Yes, sir. अगर आर्मी का डिफरेंट फ्लैग हो सकता है, सीआईएसएफ का अपना फ्लैग हो सकता है, और एक ऐसा स्टेट जिसको लगता है कि मेरे फ्लैग आने से मेरा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये मेरे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या उसको एक सेपरेट फ्लैग देने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए? सर ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग और एक स्टेटहुड का फ्लैग साथ इंडिया तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग अगर हम लोग 26 जनवरी या 15 अगस्त को देखते हैं तो नेशनल ये अपना नेशनल झंडा भी रहता है, सीआईएसएफ का झंडा थोड़ा नीचे रहता है, नेशनल झंडा को सम्मान देते थोड़ा ऊपर रखते हैं। ये काम तो हम लोग स्टेट के साथ भी कर सकते हैं, कहीं से भी सेपरेटिज्म इससे नहीं झलकता है। सर बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कभी कहीं नहीं बोलता, साइलेंट है। नेशनल फ्लैग कोड भी साइलेंट है इस मैटर पे कि किसी स्टेट का झंडा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आई थिंक इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इंडिपेंडेंस, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था देयर वाज वेरियस इश्यूज ऑफ लाइक रीजनल एंड प्रिंसली स्टेट्स, सो आई थिंक दैट टाइम इट वाज क्वाइट दैट द होल नेशन विल बी अंडर वन अच्छा, फ्लैग। ये बताइए कि आसाम राइफल किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? So it is in the Ministry of Home only. या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या ड्यूअल कंट्रोल? I think, sorry, sir, it's in the dual control because its chief or the DG is a person who is from army person. So yeah, it is under dual control. आसाम राइफल। Yes, sir. तो किसमें कि कौन सा कंट्रोल किनके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास क्या है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास क्या है? Ministry of Home Affairs के पास other paramilitary forces जैसे आसाम राइफल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और कौन सा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है? I think रिक्रूटमेंट और बाकी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किनके पास है, ऑपरेशनल कंट्रोल किनके पास है? ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। तो ये आसाम राइफल में ऐसा डुअल कंट्रोल क्यों, बाकी में तो नहीं देखने को मिलता है? Sorry sir, I'm not aware of this. ओके, अभी रिसेंटली आसाम राइफल्स पे एफआईआर लॉन्च किया गया है मणिपुर में, क्या रीजन था इसका? Actually वो केस था कि they mistakenly shot some civilians who were trying to run away with the vehicle, so they mistook them for militants and shot them. So उस केस में रिसेंट मणिपुर वायलेंस के केस में ये रीजन था? नहीं, मणिपुर नहीं, जो आसाम राइफल्स के अगेंस्ट जो एफआईआर हुआ था उस केस में था। या फिर वो बफर जोन में उन्होंने मणिपुर पुलिस को परसूट नहीं करने दिया था, रोक दिया था? तो बहुत क्लियर नहीं है इस कंटेक्स्ट में। अच्छा, ये बताइए कि मदर टंग क्या होता है? मदर टंग सर बेसिकली जो हम लोग घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग मतलब कर सकते हैं, जिस भाषा में हम लोग ज़्यादा फ्लुएंट भी हैं और ज़्यादा मतलब जो शुरू से जो बाय बर्थ जिस भाषा पे हम लोग ज़्यादा कमांड होता था। अगर हम फ्लुएंट को क्राइटेरिया मानेंगे या जो हमारी मातृभाषा उसको क्यों बोलते हैं, मतलब फ्लुएंसी देखेंगे या नहीं सर, जो हमें मिला है विरासत में उसको देखेंगे? उसी को देखेंगे सर, जो हमें विरासत में मिला उसी पे। तो ये बताइए कि संविधान के किस आर्टिकल में मदर टंग का जिक्र किया गया है? आर्टिकल 350A बोलता है कि प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में होना चाहिए, एंड आर्टिकल 351 बोलता है टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज। सो आर्टिकल 350A में यूज हुआ सर। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले बिहारी और इंडियन का, तो मेरा आपसे सवाल है कि आप पहले बिहारी हैं या पहले भारतीय हैं? सर पहले तो भारतीय हैं। मेरा लास्ट सवाल आपसे कि आप नेशनलिस्ट हैं या पैट्रियट हैं? सर आई एम अ पैट्रियट क्यों? as well as nationalist also. कारण दीजिए। I'm patriot because I think the nation comes first, and as a citizen, it's my duty to for the nation to work for the welfare of the nation. What is the difference between nationalism and patriot? The patriotic is more duty bound, and nationalism is a feeling. Means you can say it's a broader concept. फिर से बताइए जो आपने कहा, अंतिम लाइन है। Sorry sir. आपने जो अंतिम लाइन बोली उसे फिर से कहिए। So patriotism and nationalism. हाँ, So patriotic is more duty bound. For example, if I'm working as a professional, so if I'm working with all my
integrity. So that's the sense of patriotism. और नेशनलिज्म? Nationalism is a feeling of for nationhood. It's a feeling of belongingness to the nation. It's more identity part, and patriotism is more duty part. आप दोनों हैं? Yes, sir, a person can be both. कैसे? अगर मैं अपने जो आपके नेशन का कॉन्सेप्ट है वो पहले में क्यों नहीं हो सकता? पैट्रियोटिज्म में क्यों नहीं हो सकता? I think so, a patriotic person is a nationalist person also, sir. यही कहना चाहते हैं आप? Yes. स्पष्ट हैं आप? Yes. अब बताइए आपकी मदर टंग कौन सी है? So it's Hindi. हिंदी है? Yes, sir. आपने तो इंग्लिश भी लिखा है, Yes, sir. Means इंग्लिश भी है। इंग्लिश में मतलब इक्वली कंफर्टेबल है सर दोनों लैंग्वेज। आप कंफर्टेबल हैं ये मतलब नहीं रखता है। हम्म। मदर टंग का क्या होती है? आपने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? यस सर। वही है ये इंग्लिश और हिंदी? यस सर, हिंदी है सर। इंग्लिश भी है? नो सर। तो आपने तो इंग्लिश लिखा हुआ है, तो सोच के ही लिखा होगा। सर ध्यान नहीं दिया तो लिखने में। मदर आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर आप लोग हिंदी में बात करते हैं सारे? अच्छा, वहाँ की स्थानीय कोई बोली नहीं है, स्थानीय भाषा कोई नहीं है सर, मगही भाषा है, बट बेसिकली घर पे खड़ी हिंदी में ही बात होती है। खड़ी हिंदी में ही बात होती है आपकी। मगही पान के बारे में सुना है आपने? यस सर। क्या होता है, क्या है विशेषता इसकी? सर मगही पान को तो फिलहाल जीआई टैग मिला हुआ है और ये फेमस है। इसकी विशेषता क्या है? जीआई टैग मिलने के पीछे कोई वजह तो होगी। यस सर। क्या है वजह? पता नहीं सर मुझे। नहीं मालूम। मगही भाषा भी है तो आप बताइए, बोली है उसको आप बताइए। आप वॉलीबॉल पसंद करते हैं? जी सर। इसको कंपेयर करिए सिविल सर्विस से। वॉलीबॉल? हाँ, जो इसके डिसिप्लिन्स हैं वो इसमें कंपेयर करिए लोक सेवा से। करिए आप कंपेयर। यस सर। हाँ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। सर जैसे वॉलीबॉल में रूल्स होते हैं कि सिंपल सा रूल है कि बॉल को आपको अपोनेंट के ग्राउंड में लैंड कराना है, चाहे अपोनेंट से फॉल करवाना है। यही सिंपल पॉइंट होता है, बेसिक होता है। इसमें रूल होता है पॉइंट गेन करना। सिविल सर्विसेज में सर आप ये सिविल सर्वेंट सर द पर्पस इज दैट कि तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। वॉलीबॉल के बारे में कहा जाता है कि पहले सांस लीजिए, फिर विश्वास कीजिए और फिर लड़िए। ये कॉन्सेप्ट है, सांस लीजिए, विश्वास कीजिए और लड़िए। क्या है ये कॉन्सेप्ट? इसका क्या मतलब हुआ? आपने कभी सुना है ऐसा? मुझे सुना तो नहीं है मैंने, बट इसका मतलब क्या निकालते हैं? मान लीजिए आपको एक मतलब निकालना हो तो क्या निकालेंगे आप? इसका मतलब होगा सर सांस लेने में मतलब रिलैक्स कीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए एंड देन कम टू द प्लेग्राउंड एंड प्ले फॉर दैट, प्ले टू विन। सांस लीजिएगा मतलब टू रिलैक्स कीजिए। सांस लीजिए मतलब कि आपका डर जो है टू रिमूव योर फियर्स, बेसिकली उस सेंस में टू रिमूव योर फियर्स। और अगला विश्वास कीजिए मींस हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर योरसेल्फ दैट यस यू कैन डू एंड देन कम टू द फील्ड। ठीक है, एक केस स्टडी आपके सामने मैं रख रहा हूं। मान लीजिए कि आप एसडीएम के रूप में कहीं पे नियुक्त होते हैं और आपके ऑफिस पे एक बुजुर्ग महिला आती है, रोज आती है। आप उसे देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आपके पास इतने काम है। लेकिन आप एक दिन सोचते हैं कि ये क्या बात है, ये क्यों आ रही है? तो आप उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि मैंने यहाँ स्थानीय स्तर पे अपनी जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके कागज़ जमा किए थे और उस पेंशन के लिए मैं बार बार जा रही हूँ, मुझे उसकी पासबुक नहीं मिल रही है, वो पेंशन भी नहीं आ रही। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आप उससे जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास से ले लेते हैं। दूसरे दिन आप उसका वो डॉक्यूमेंट वगैरह लेके उसकी पेंशन वगैरह
क्लियर करा के अपने घर से आप खाना बनाते हैं, खाना बनवाते हैं और उसके साथ उसको लेके चले जाते हैं आप उसके घर पे बैठते हैं, आप देखते हैं उसकी झुग्गी झोपड़ी है बहुत, और मतलब गरीब महिला है वो, आप उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं, ज़मीन पे ही आप भी बैठ जाते हैं और उसकी थाली में खाना खाते हैं। इस काम को आप क्या कहेंगे अपने? सर ये तो मेरा ड्यूटी है कि जस्ट टू उस एक तो ड्यूटी की तरह देखेंगे कि उसका पेंशन क्लियर कराना है, जो भी है वो मेरी ड्यूटी की तरह है। और सेकंड चीज देखेंगे सर, एक तरह का कॉन्फिडेंस। आप जो खाना खा रहे हैं बैठ के उनके यहाँ, वो क्या है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। आपने बनवाया, उसका सारा काम किया, सारा पेंशन का सारा रिकॉर्ड ठीक किया और आप पहुँच गए उसके घर, सारा कुछ लेके कि लो माँ, अब तुम मान लीजिए माँ ही आप बोलते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप उसके साथ बैठ के खाना खाते हैं। नहीं सर, वो अनप्रोफेशनलिज्म हो जाएगा उस केस में, क्योंकि ठीक है आप काम करा के उनके होम डिलीवरी दे रहे हैं उस चीज़ की, वो ठीक है, लेकिन हाँ उनके घर बैठ के खाना खाना, अगर उस तरह से और भी लोग आने लगे तो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए एसडीएम। क्या मतलब खाना खाना अनप्रोफेशनल है? हाँ, खाना खाना उनके घर में अनप्रोफेशनल है। उनके घर में अनप्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि एज अ एसडीएम मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर हूँ। हाँ। सर्विस प्रोवाइडर आप जो सर्विस दे रहे हैं, हाँ। आप अनप्रोफेशनल के आप उनके साथ उनके घर पे बैठे हुए हैं, या मतलब उनका कागज पहुंचाना, आप उनका कागज लेके जाना, आपका वो अनप्रोफेशनल नहीं है। उसके साथ बैठ के खाना खाना वो अनप्रोफेशनल है। यस। ये प्रोफेशनल कैसे हो गया, कागज पहुंचाना उनके घर पे? तो चूंकि वृद्ध महिला है, एज अ गवर्नेंस में वृद्ध महिला है तो क्या हुआ? एज अ गवर्नेंस में, यानी एज ए गवर्नेंस आपके पास जितनी भी महिलाएं इस तरह की वृद्ध आएंगी, सबके घर आप कागज पहुंचाने जाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, बहुत अच्छा, अनप्रोफेशनल है। लेकिन कागज पहुंचाने आप सबके यहाँ जाएंगे, ये प्रोफेशनल है। अगर सबके यहाँ खुद से पर्सनली नहीं पाए जाए, वृद्ध औरत है तो अगर इन नहीं, केस वृद्ध औरत जाहिर सी बात है कि आप वो अकेली वृद्ध औरत नहीं होगी, और भी होंगे। तो आप सबके यहाँ इस तरह से, सबके यहाँ कोई ना कोई, किसी के पास राशन कार्ड नहीं होगा, किसी के पास कुछ और नहीं होगा, तो आप सबके घर पहुंचाने जाएंगे, वो प्रोफेशनल है। नहीं सर, जस्ट एक्सेप्शन इस केस को देखा जाए। नहीं, एक्सेप्शन क्यों देखेंगे आप? लोक सेवा के क्षेत्र में कुछ भी ऐसा होता है क्या? लोक सेवक के लिए कुछ भी ऐसा होता है क्या? प्रोफेशनलिज्म क्या है? सिविल सर्विस में प्रोफेशनलिज्म क्या है, आप बताइए। ये आप ही का सवाल है, आप ही से निकला है। प्रोफेशनलिज्म था कि आप अपने ड्यूटीज जो है आपका अलॉटेड है, उसको आप समय पे टाइम बाउंडली इफेक्टिव वे में आप तो अपनी ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं ना भाई। प्रोफेशनलिज्म क्या है? टाइम बाउंड ड्यूटी ही प्रोफेशनलिज्म है कि डिलीवरी प्रोफेशनलिज्म है? डिलीवरी भी उसका हिस्सा है सर, एज अ सिविल सर्वेंट, और लोगों तक किसी भी स्कीम का बेनिफिट्स पहुंचाना, डिलीवर करना, दैट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म ओनली। लेकिन ये होम डिलीवरी वाला सिस्टम है, एज एक्सेप्शन मैंने देख लिया इसे, बट इन जनरल अगर ऐसा हो तो शायद नहीं करना चाहिए, और इन जनरल नहीं होना चाहिए था। यस सर, या तो फिर एक मैकेनिज्म हो कि एक मिनट, ये इन जनरल नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। आपको जाने से बेहतर होता कि आप एक ऐसा सिस्टम होता आपके यहाँ कि लोगों को भटकना नहीं पड़ता। यस सर। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप तो पहुंच गए घर, खाना नहीं खाया आपने, क्योंकि आपको वो आपके प्रोफेशन के अगेंस्ट लगा। मैं उसको एक्सेप्ट, लेकिन आपका जो जाना है वो भी तो प्रोफेशन के अगेंस्ट है आपका। सर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि वो भी गलत है। थैंक यू सर। आपका एक्सपीरियंस है, वेरी गुड कैंडिडेट। कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जैसे आप जब एंट्री करते हैं उसी समय अगर आप एड्रेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप बैठ के उसके बाद आपने गुड मॉर्निंग बोला, हो सकता है और भूल गए, वो वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। आई कांटेक्ट के मामले में क्या है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे तरफ देख के बोले ज़्यादातर, क्योंकि आई विल बी इंटरेस्टेड इन योर आंसर। बाकी पैनलिस्ट तो अपने अपने उसमें रहेंगे, तो ओकेजनल ग्लांस ठीक है, बट प्राइमरी अटेंशन मेरे तरफ देना पड़ेगा। इशू क्या है? इशू ये है कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस में आप फंस गए, और वो कॉन्ट्रडिक्शन में इसलिए फंसे क्योंकि आप अलर्ट नहीं थे कि अगर आप एक नेशनल लेवल पे सर्विस आपके हाथ में है
और वहाँ पे जब मैं पूछता हूँ कि आप बिहार सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, ये लैक ऑफ अलर्टनेस की वजह से हुआ। आपने बोला कि आई एम कनेक्टेड टू बिहार, दिस एंड दैट, आई लव बिहार, वॉट एवर यू सेड, है ना। तो उस जगह पे एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपने जन्म दे दिया Yes. कि नेशन वर्सेस स्टेट का, और वो आप कुछ भी कह लीजिए आप संभाल नहीं पाएंगे। बात तो सही। आप समझ गए ना। Yes, sir, वो और वो डैमेज हो गया है। दिस इज व्हाट आई कॉल ऑफन, दिस रिक्वायर्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस इन द सेंस कि टू थिंक दैट आपके आंसर जो आप दे सकते हैं वो आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी डैप में दे दिया है जहाँ पे मैं फंसूंगा। ये आंसर अगर कोई एकदम फ्रेशर जिसके पास कोई जॉब वॉब नहीं है वो देता है तो चल जाता है, आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक।